still question remains, what is cyanosis? The bluishness of skin due to increased deoxygenation. तो इसका मतलब है कि there should be some value of it. डिक्रीज इंक्रीज की अगर बात करते हैं, कोई वैल्यू होनी चाहिए ना. व्हाट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन? एक वैल्यू बताओ इन ब्लड. व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन? वन वैल्यू अगर याद रखनी हो तो ये बनती है. व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम पर डेसीलीटर. इट इज ऑलवेज ग्राम, इट इज नेवर मिलीग्राम. प्लीज mistake, do not make this mistake. In a normal person, please listen very carefully. In a normal person, if there is 15 gram, out of this more than 10 gram is oxygenated hemoglobin. So आगे क्या लिखूं? Less than 5 gram is deoxygenated hemoglobin. These are the values for a normal person. More than 2/3 will be, ये 2/3 ही बना ना? More than 2/3 will be oxygenated and less than 1/3 will be deoxygenated hemoglobin. We have to memorize like that. If someone is having 12 Hb, it means more than 8, 2/3 8. More than 8 will be oxygenated and less than 4 will be deoxygenated. Clear? I have just given you scenario when I told you that there are too much RBCs. So it means what is happening to it? Increasing. What is the cutoff value? 16.5. 16.5 तक normally चलेगा. इससे ऊपर चला जाए तो there is a warning sign. If someone is having hemoglobin of 17, an adult human being hemoglobin of 17, now it is a problematic hemoglobin. You will not like give him a medal or her. Oh wow, very good, शाबाश. वो नीला हुआ सर. समझ रहे हो बात? अब जरा देखो, अगर ये 16, चलो हम इसको एक ले लेते हैं. If it is तो 20 कर लेते हैं, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं समझने के लिए, वैल्यूज के लिए. If someone is having 20 hemoglobin, what about the 2/3 of 20? It will be like 14, 15, round about it. So हम इसको लेते हैं, he will be having 14 gram of oxygenated. Deoxygenated कितना बन रहा है फिर? 6. Now let me tell you the definition of cyanosis. If someone is having more than 5 gram of deoxygenated hemoglobin in his or her blood, how much? More than 5 gram of deoxygenated, then that patient will be suffering from cyanosis. What should be the normal amount of deoxygenated hemoglobin? Less than 5 gram per deciliter. If that value goes above and beyond 5 gram per deciliter, of what? 5 gram of what? Deoxygenated hemoglobin. I'm not talking about the whole hemoglobin now, please. This is important to know. I'm talking about only which part of hemoglobin? The deoxygenated part. If it goes beyond 5 gram, the patient will be labeled as cyanotic. Doubt नहीं है इसमें कोई. अब ये ना रखना 5 से कितना ऊपर, 5.01 भी है तो साइनोटिक है बुकिश डेफिनेशन में. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. अब अगली बात करते हैं. अब ब्लूइशनेस क्यों हो रही है? डीऑक्सीजनेटेड के ज्यादा होने से ब्लूइशनेस क्यों हो रही है? बिकॉज वी ऑलरेडी नो द कलर ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज नॉट चेरी रेड, इट इज पर्पलिश रेड. दैट पर्पलिश रेड tinge appears on the skin slightly blue. We usually call it blue, but actually it's not blue. It's purplish red that appears to be blue on the skin. Skin भी तो साथ कलर मिक्स हो रहा है ना. हमें कौन सा सीधा ब्लड नजर आ रहा है? तो वो स्किन के कलर के, आपको पता है ना, कलर मिक्स हो जाते हैं तो कलर का बदल जाता है. कलर्स में कोई और ऊपर सीक्वेंस डाल दो, कोई और फिल्टर पेपर रख दो, कलर चेंज हो जाता है. We use it in the cars headlights also. We do not change the bulb or change the headlight. We just put a filter paper in front of that headlight. The color change appears changes. हालांकि लाइट तो वही आ रही है पीछे से. बिल्कुल सिमिलरली जब स्किन का कलर भी शामिल होगा, कैपिलरी की मेम्ब्रेन का कलर भी शामिल होगा, दरमियान में फेशिया है, दरमियान में मसल्स हैं, वो इतना कुछ शामिल होकर जब ऊपर स्किन पे अपेयर हो रहा है तो शायद ब्लू हो रहा है. ये बात क्लियर हो गई? हो जाए ब्लू तो प्रॉब्लम क्या है? ब्लू ही हो रहा है ना. सो व्हाट? एग्जैक्टली जो अभी आपने बात की थी कि डीऑक्सीजनेशन हो रही है,
तो डीऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन बढ़ना, इट्स नेवर अ गुड न्यूज फॉर ह्यूमन बॉडी. It means that tissues which are receiving this more than 5 gram of deoxygenated, they are now badly affected. There is no doubt about it. Now they are not functioning properly. The amount of oxygen, and if amount of oxygen is not given to the tissue properly, so everything stops. Everything is damaged. Your glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, ATP formation is directly dependent upon now two things from the blood: now, amount of glucose, amount of oxygen. And now cyanosis is causing what? Decrease in oxygen. माइट भी ग्लूकोज इज एबंडेंट, क्या करें ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन ही नहीं है, यूज नहीं कर सकते, ग्लाइकोलिसिस ही चलेगी सिर्फ, जो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट. आगे पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन एवरीथिंग स्टॉप्स, सो नंबर ऑफ एटीपी स्टॉप्स. हाउ विल पेशेंट प्रेजेंट नाउ अदर देन द ब्लूइशनेस ऑफ स्किन? इरेजोरेंट, हाँ बताओ. फटीग, तो अच्छा इंटरेस्टिंग. If someone is coming to me with fatigue, should I label him as anemia or polycythemia? What is polycythemia? Our today's topic, जो कि मैं लिखने लगा था. Abnormal increase in number of RBC is called as polycythemia. My question still remains, how will I differentiate if someone comes to me with fatigue? Usually fatigue does not happen in polycythemia. Fatigue is not a primary feature of polycythemia. ये मैं क्लियर कर लो, मैं आपको इसलिए डाउट क्लियर कर रहा हूं, आपके मुंह से पहले मैंने बात निकलवाई है, मैं उसको क्लियर करूंगा. अगर आपके क्लिनिकल सिनेरियो में समवेयर इज रिटन है समवन इज हैविंग फटीग, डू नॉट अडॉप्ट द लाइन ऑफ पॉलीसाइथीमिया प्लीज. ऑलवेज गो टुवर्ड्स एनीमिया. गाड़ी गलत रास्ते पे नहीं ले जानी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी मैं रीजन बताऊं आपको. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. अगर ये 5 ग्राम से ज्यादा है तो ये भी तो ज्यादा हो रहा है ना, isn't it? इसमें अगर इसको हमने 6 कर दिया है तो ये भी तो 14 पे चला गया. तो इसका मतलब है ये some tissues will not be having proper oxygenation, but some tissues. साइनोसिस अपीयर कहां पे होता है बॉडी में? Yes, there are very few places where cyanosis can appear. टिप ऑफ द फिंगर्स, पेरिफ्रीज में होता है, पेरिफ्रीज में जाए. टिप ऑफ द फिंगर्स, टिप ऑफ द नोज, ईयर लोब, ये जगह होती है साइनोसिस चेक करने की. टिप ऑफ द टंग एज वेल. ये बॉडी में नहीं होता जनरलाइज. ऐसे बंदे की बॉडी एक्सपोज करके आप एग्जामिन करो, उसके एब्डोमेन पे, उसकी चेस्ट पे, उसकी लेग्स पे, आपको कहीं भी साइनोसिस नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ पेरिफ्रीज के एक्सट्रीमिटीज में मिलेगा. टिप ऑफ द टोज में मिल सकता है, टिप ऑफ फिंगर्स में मिल सकता है, लूब ऑफ ईयर, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ टंग, यहां मिलेगा बस. तो ये चीज क्या शो कर रही है कि इसका मतलब है कुछ टिश्यूज में डीऑक्सीजनेशन है, मेजॉरिटी में नहीं. जब मेजॉरिटी में नहीं है तो व्हाई फटीग देन? व्हाट्स द लॉजिक ऑफ फटीग? दैट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन टिश्यूज आर नॉट प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड. दैट्स द लॉजिक ऑफ फटीग. दैट्स व्हाई जनरली होल मसल्स आर फटीग, बिकॉज देयर इज नो. फटीग का कॉन्सेप्ट है क्या? हम सब जब थक जाते हैं हम उसको फटीग कहते हैं. हम शाम को सब फटीग्ड होते हैं जनरली. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या फटीग? ऑक्सीजन नहीं मिली पूरी प्रॉपर, ग्लूकोज कम हो गई, एटीपीज नहीं बन रहे, एटीपीज फॉर्मेशन नहीं हो रही. एनीमिया में तो वो समझ आती है कि पूरी बॉडी को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पूरी बॉडी में एटीपीज नहीं बन रही, तो पूरी बॉडी फटीग है. पॉलीसाइथीमिया में लॉजिक नहीं लगानी. वाइवे में ना बोलना है फटीग का वर्ड पॉलीसाइथीमिया के साथ, ना ये बताना है, ना इसके साथ कोई वो गाड़ियां. ये पता क्या कॉन्सेप्ट है पॉलीसाइथीमिया का? रोड ब्लॉक. गाड़ियां आगे, गाड़ियां खड़ी 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 खड़ी, सारी स्पीड स्लो हुई हुई. इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई है रोड पे कि स्पीड स्लो हो गई. और एनीमिया में गाड़ी कोई नहीं है, बहुत अरसे बाद आ रही है, तो जो चल रही है वो स्पीड से चल रही है. साइनोसिस विल नेवर एवर अकर इन एनीमिया. लॉजिक देखो यार, सुन लो. इन एनीमिया द मैक्सिमम, एनीमिया के अंदर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कितनी हो सकती है? 10.9. 11 भी नहीं है, इवन इंटरनेशनली बोलो तो 12 है, जो लोअर मार्जिन है हीमोग्लोबिन का, जहां तक हम आ सकते हैं. इवन 12.5 भी कुछ बुक्स में लिखा है. मैं पाकिस्तान की वैल्यू की बात कर लेता हूं. पाकिस्तान में 11 भी हो तो बहुत बड़ी बात, स्पेशली इन फीमेल्स. तो 10.9 पे अगर हम एनीमिया कह रहे हैं तो 10.9 का 2/3 और 1/3 जो है वो 5 से तो नीचे ही. तो साइनोसिस विल नेवर एवर अकर इन एनीमिया बिकॉज द डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन will never ever go beyond 5 gram in anemia.
आप में से जो लोग वाइवे में साइनोसिस की डेफिनेशन भूल जाएंगे ना, वो शायद ये आंसर कर देंगे कि एनीमिया में भी साइनोसिस हो सकता है, शायद। लेकिन जिसको साइनोसिस की डेफिनेशन याद रहेगी, द अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन शुड बी मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर, देन साइनोसिस विल अकर, and this amount more than 5 gram will reach in anemia. It will always remain below 4, 3, 3.2, might be 3, 43 से भी नीचे हो सकती है। Getting it or not? अगर मैं आपको टास्क दूं कल के लेक्चर के लिए, can you tabulate 5 to 10 differences between anemia and polycythemia? आपने लिख कर लेकर आना एक पेज के ऊपर कर। You all have this task. Minimum 5, मैक्सिमम जितने मर्जी लिख लो। अच्छा, और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एमबीबीएस के अंदर डिफरेंसेस लिखने का तरीका, ये भी मैं बता दूं। ये मुझे पता है कल जो मेरे पास आ रहा होगा तो मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, भी बता देता हूं। ये डिफरेंसेस सिर्फ ना नंबर बढ़ाने के लिए, पता क्या कहते हैं नंबर बढ़ाने के लिए? डिफरेंस नंबर 1 एनीमिया के नीचे लिख रहे हैं हीमोग्लोबिन लेस देन 11, पॉलीसाइथीमिया के नीचे लिख रहे हैं हीमोग्लोबिन इज नॉट लेस देन 11। डिफरेंस नंबर 2 पॉलीसाइथीमिया के नीचे लिख रहे हैं हीमोग्लोबिन मोर देन 16.5, एनीमिया के नीचे हीमोग्लोबिन इज नॉट मोर देन 16। ये डिफरेंसेस नहीं होते, ये स्टुपिडिटी नहीं करनी नंबर बढ़ाने के लिए। डिफरेंस का मतलब ये होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका लिखो और एक ही में लिखो। एनीमिया की डेफिनेशन अगर नीचे कर रहे हो तो वहां पे उसके बराबर में पॉलीसाइथीमिया ऊपर कर दो, इसका एक ही डिफरेंस होना चाहिए, ये 2-3 नहीं होने चाहिए। जिसने नहीं ना पढ़ा होता वो ये कर रहा होता, पॉइंट पे यस और नो, बस यस नो डिफरेंस चल रहा होता।